वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं थर्ड टेंपल अपडेट 2023। जैसे कि मैंने आपको थर्ड टेंपल की अपडेट दी थी, उसके साथ ही रिलेटेड ये है लाल बच्चे की वीडियो। इजराइल ने 5 लाल बच्चियां इंपोर्ट करवाई है टेक्सास से, जो कि अमेरिका की स्टेट है। और अभी इसकी रिसेंटली अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सारी 5 की 5 लाल बच्चियां जो है वो पाक है, उनमें एक भी बाल किसी और रंग का नहीं निकला है। और इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है टेंपल इंस्टीट्यूट की तरफ से। टेंपल इंस्टीट्यूट का कहना है कि इनमें कुछ बच्चियां 1 साल 6 महीने की है और कुछ 2 साल की। खुदा के कलाम के अनुसार जो कुर्बानी है अगर सेम टू सेम वैसी देनी है तो उसके लिए जो लाल बच्ची है उसकी उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए और इस दौरान उसका एक भी बाल किसी और रंग का नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि साल 2024 को पास ओवर तक अगर ये लाल बच्चियां पाक रहती है तो ये कुर्बानी कर दी जाएगी। तो इनका मकसद क्या है, यहाँ पर होने क्या वाला है, वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इन लाल बच्चियों का स्टेटस क्या है। तो आए इस रिपोर्ट के अंदर देखते हैं। Are now in a secure, undisclosed location in Israel. Plans include moving them sometime soon to a visitor's center in Shiloh, where the tabernacle of the Lord once stood for nearly 400 years. The book of Numbers explains that ashes of the red heifer are used to purify priests for their service in the temple. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, This is the ordinance of the law which the Lord has commanded, saying, Speak to the children of Israel that they bring you a red heifer without blemish, in which there is no defect and on which a yoke has never come. You shall give it to Eleazar the priest, that he may take it outside the camp, and it shall be slaughtered before him. Its offal shall be burned, for the water of purification. It is for purifying from sin. These red heifers are now between 1.5 to 2 years old. To replicate the ceremony mentioned in the Bible, they need to be at least 3 years old. And within that time span, they cannot have a blemish or anything that would disqualify them for the ceremony, even one white or black hair. According to those working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked. अच्छा, माउंट ऑफ ओलिव्स जो है उस पर जगह भी खरीद ली टेंपल इंस्टीट्यूट ने, जहां पर उस सेरेमनी को करना है। ये जो जैतून का पहाड़ है ये बिल्कुल हैकल के सामने है, जहां से हैकल साफ साफ दिखाई देती है। वो खास जगह भी टेंपल इंस्टीट्यूट ने खरीद रखी है। आप सुनिए जरा आगे। Into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards. It's had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place. Rabbi Yitzhak Mamo heads Yuvnei Jerusalem, dedicated to the goal of rebuilding the third temple. He owns the land here on the Mount of Olives. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer. That actually will be the first step to the temple. Mamo says the ceremony needs priests who have not been defiled by touching anything dead. The Temple Institute actually have 9 pure priests. अच्छा, इस सेरेमनी को करने के लिए ऐसा प्रीस्ट चाहिए जो पाक हो, जिसने कभी किसी मुर्दा चीज को छुआ ना हो और ना ही उसके पास से गुजरा हो और ना ही कभी कब्रिस्तान के पास गया हो। तो टेंपल इंस्टीट्यूट ने 9 ऐसे प्रीस्ट तैयार कर रखे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल पाक हैं। दैट्स मीन हर चीज रेडी है, उनके पास कपड़े रेडी हैं, उनके बर्तन रेडी हैं, टेंपल की हर एक चीज रेडी है, सब कुछ इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। इनको सिर्फ एक साइन चाहिए खुदा की ओर से, और वह साइन क्या है? लाल बच्चियां। अगर तो ये लाल बच्चियां पाक रहती हैं तो इनको लगेगा कि हमें साइन मिल गया कि हम टेंपल बना लें। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, पहले आप आगे देख लें फिर मैं बताता हूँ। They didn't born in hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway they don't go to any cemetery, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. Byron Stinson of B'nai Israel, a group dedicated to building up biblical Israel, works with Rabbi Mamo and helped find the red heifers in the U.S. He says these would be the first in 2,000 years, and that the process toward a third Jewish temple began when the Jewish people started their return to the Promised Land from the 4 corners. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, जब से इजराइल मैप के अंदर फिर से आया सन 1948 के अंदर, तो उसके बाद इन्होंने कई बार कोशिश की कि लाल बच्चियां इनकी लैंड पर पैदा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या होता था, जब कोई लाल बच्चियां पैदा होती थी तो वह मर जाती थी इससे पहले कि वो 3 साल की होती, और ये काफी टाइम से इंतजार कर रहा है थर्ड टेंपल का। तो इनको साइन क्या चाहिए? लाल बच्चियां। लाल बच्चियां बेसिकली इस्तेमाल होती है उसकी राख प्रीस्ट को पाक करने के लिए, ताकि वो खुदा की हैकल में दाखिल हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ
क्या वो ही खुदा की हैकल जिसमें खुदा की हुजूरी होती थी, जिसके अंदर खुदा का अहद का संदूक होता था, जिसके अंदर खुदा की हुजूरी होती थी, और वो इतना पाक था कि कोई भी नापाक शख्स उसको छू भी नहीं सकता था। अगर कोई नापाक चीज उसको छू लेती थी तो वो वहां पर ही उसकी मौत हो जाती थी, क्योंकि उस अहद के संदूक के अंदर खुदा की हुजूरी होती थी। फिर जब दूसरी हैकल बनी उस समय यीशु मसीह मौजूद थे, मगर उसमें खुदा की अहद का संदूक नहीं था, मतलब खुदा की हुजूरी तब भी वहां पर नहीं थी। अब क्या ये लोग इस टेम्पल के अंदर अहद के संदूक को लाएंगे? क्या इनके पास अहद का संदूक मौजूद है? या खुदा के कलाम के मुताबिक जो प्रोफेसी लिखी गई है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, एंड इट शैल कम टू पास व्हेन ये बी मल्टीप्लाइड एंड इनक्रीज इन द लैंड इन दोस डेज सेज द लॉर्ड, they shall say no more the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done anymore। यानी कि ना तो उसको कोई विजिट करेगा, ना कोई उसको ढूंढेगा, ना कोई उसको याद करेगा कि अहद का संदूक भी होना चाहिए, और इसके अलावा ना तो वो दोबारा से बनाया जाएगा। तो अब अहद का संदूक ही हैकल के अंदर नहीं होगा तो खुदा की हजूरी कहाँ से आएगी? तो इस बात से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हैकल बनाई जा रही है, थर्ड टेम्पल बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी खुदा की मर्जी से नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि जब से हम नए नियम में आए हैं, जब से यीशु मसीह उठाए गए हैं आसमान पर, तब से खुदा की हुजूरी हैकल में नहीं है। अब ये चाहे हैकल बना ले, चाहे जो मर्जी बना ले, इसमें खुदा की हुजूरी नहीं होगी, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है खुदा इंसान के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हाउ डिड द मोस्ट डिवेल्ट नॉट इन टेम्पल मेड विद हैंड्स, एज सेड द प्रॉफिट्स, हेवन इन माय थ्रोन एंड अर्थ इज माई फुटस्टॉल, व्हाट हाउस विल ये बिल्ड मी। खुदा ने कहा भाई तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव रखने की चौकी है। खुदा इंसान के हाथों से बने हुए घरों में नहीं रहता है। जब से यीशु मसीह उठा लिए गए, जब से दूसरी हैकल तबाह हुई, 70 AD से पत्थर पर पत्थर नहीं रहा, तब से इंसान का जो शरीर है ये खुदा का रहने का स्थान है। लेकिन कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं जिनका मानना है कि जब तक हैकल तीसरी नहीं बनेगी तब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा। एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा तो यीशु मसीह ने कब आना है? एंटी क्राइस्ट के बाद यीशु मसीह ने आना है। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी थर्ड टेम्पल बन जाए और एंटी क्राइस्ट आ जाए। तो ये सोचना भी इनका बेकार है, होना वही है जो खुदा चाहेगा। इंसान अपनी मर्जी से वक्त तब्दील नहीं कर सकता, और अगर वो खुदा की ओर से वक्त आ गया तो ये जो बच्चियां हैं ये पाक रहेंगी, ताकि ये कुर्बानी दी जाए और तीसरी हैकल बनाई जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरी हैकल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि यहूदियों के अंदर भी दो किस्म के लोग हैं, उनकी भी दो किस्म की सोचें हैं। एक ग्रुप कहता है जब तक टेम्पल नहीं होगा मसीह सामने नहीं आएगा, और दूसरा ग्रुप कहता है मसीह नहीं आके टेम्पल बनाना है। तो ये जो ग्रुप है इनकी आपस में नहीं बन रही है, लेकिन ये सेरेमनी इन्होंने कर देनी है, क्योंकि टेम्पल इंस्टीट्यूट इन सारे रिलीजन अफेयर को देखता है, तो वो एक अथॉरिटी है इसराइल के अंदर। अब अगर खुदा की मर्जी है कि हो जाए तो अगले साल 2024 में पास ओवर पर, यानी मई या अप्रैल के महीने के अंदर आप देखेंगे ये रस्म अदा कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि दुनिया के एंड में जो मेजर इवेंट होने हैं उनमें से कुछ इवेंट होने ही बाकी रह गए हैं। मेरे हिसाब से ये न्यूज़ हमें बता रही है कि वक्त बहुत करीब आ गया है, और अगर ये लाल बच्चे को कुर्बान कर देते हैं तो आप देखना टेम्पल फिर कुछ ही सालों में बन जाएगा। साल तो मैंने ऐसे कह दिया, ये तो कुछ ही महीने में उसे बना देंगे, क्योंकि सारा कुछ इनके पास रेडी है। एक बार बस हैकल बन गई, आप समझ जाना एंटी क्राइस्ट सामने आने वाला है। और जैसे ही वो सामने आ गया फिर हमारे धरती पर सिर्फ 7 साल हैं, और यीशु मसीह अपने प्यारों को लेने के लिए वापस आ जाएंगे और हम उनके साथ उठाए जाएंगे। और कितना खूबसूरत वो मोमेंट होगी जब खुदा हमें उठाकर ले जाएगा। तो प्लीज जागते रहें। मैं आपको वॉचर्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप जाग रहे हैं। खुदावंद खुदा यीशु मसीह ने भी आपको जागने के लिए बोला, सो प्लीज जागते रहें और खुदा की खिदमत करते रहें। अब अपना जीवन ये सोचकर बिताएं कि हमारे पास कुछ ही साल रह गए हैं, हमारे पास कुछ ही पल हैं और हम खुदा के पास चले जाएंगे। अपनी लाइफ को इतना सिक्योर रखें, इतना प्योर रखें और खुदा के कलाम को पढ़ते रहें। आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।